हमारे मीडिया और प्रेस परिवार के जो साथी हैं, मैं इनका भी एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का भी मैं पुनः स्वागत करता हूं और डीआरएम सर को धन्यवाद देता हूं वेलकम स्पीच के लिए। मैं अब निवेदन करूंगा मंत्री जी से, श्री आर पाटिल सर से कि प्लीज आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। भारत माता की अर्धा लोग बोला आशीर्वाद बोला नहीं, આપણે બધા એક સાથે બોલીશું ભારત માતા की। મિત્રો, રોજગાર મેળાના આજના કાર્યક્રમમાં વડોદરા ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત વડોદરા શહેરના મેયર શ્રીમતી પિંકીબેન સોની, સાંસદના મારા સાથીઓ, વડોદરાના सांसद श्री हेमाभाई, आणंदना सांसद श्री रितेश भाई, छोटा उदेपुरना सांसद श्री राठवाजी, श्री डीआरएम श्री राजू भड़के, वडोदरा शहरना म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अरुण महेश बाबूजी, अहीं उपस्थित डेप्यूटी मेयर श्री चिराग भाई बारोट, भारतीय जनता पार्टी वडोदरा शहर प्रमुख श्री डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, पूर्व प्रमुख डॉक्टर विजय भाई शाह, शिक्षण समिति चेरमेन श्री निषेध देसाई, आमंत्रण ने मान आपीने पधारेला सौ आगेवान भाई बहनों अने जेमने आजे रोजगार मेळानो लाभ मळवानो छे एवा सौ लाभार्थीओ भाई और बहनों, आप सौने प्रणाम, आप सौने वंदन। मित्र, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब द्वारा जे अलग अलग प्रकल्पों द्वारा लाभार्थीओं ने लाभ पहोंचाडवानो जे सीधो प्रयत्न थयो, एवी अनेक योजनाओं बनी। आपणे जोयुं हशे के बहनों माटे जे गैसने तकलीफ थी, ए गैसना कनेक्शनों मळवा माटे वर्षो राह जोता था। ए दरेक घर में बहनों ने बीपीएल कार्ड धारक बहनों ने मफत में एना कनेक्शनों मळ्या। तमे जोयुं हशे के जेने घर विहोणा लोको छे दरेक ने घर मळे एना माटेनी योजना बनावीने करोड़ो घर, लगभग 4 करोड़ थी वधु घर ए लोकोने अहींया मोदी साहेबनी योजनामां आपवामां आव्या। आरोग्य योजना द्वारा 5 लाख और राज्य सरकार द्वारा पण बीजा 5 लाख एटले गुजरात में 10 लाख रूपियानी सहाय एमां पण आरोग्य माटे ज्यारे खर्च थाय एना माटे आपवामां आवी। दरेक घर में टॉयलेट बने, जे 70 वर्ष पछी टॉयलेटनी व्यवस्था नहोती एना माटेनी व्यवस्था, एना माटेनी योजनाओं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेबे करी। दरेक ने घर में नल से जल मळे एना माटे भी लगभग 15 करोड़ घरों में हमणां सुधी में पानी कनेक्शन आपवामां आव्या ने हजू 4 करोड़ घरों में पानी आपवानी योजना ए चालू है। એટલે દરેક घर सुधी पहोंचવાનો प्रयत्न ए सफलतापूर्वकનો प्रयत्न माननीय मोदी साहेबे अलग अलग योजनाओं द्वारा कर्यो छे। अने आ रोजगार मेळा द्वारा पण आजे लगभग 51,000 लोकोने અને હમણાં સુધીમાં 10 લાખથી વધુ યુવાનોને સરકારી અને સરકારી સંસ્થાઓ એમાં અમને નોકરી મળી છે। જેમાં હમણાં માન્ય શ્રી ડીઆરએમજીએ કહ્યું કે અહીંયા જે લોકોને નોકરી આપવાના છે એમાંથી 51 લોકો તો રેલવેમાં છે। રેલવેમાં નોકરી હોય એના માટેની જ્યારે જાહેરાત આવે ત્યારે હજારો લાખો યુવાનોએ નોકરી મેળવવા માટેના પ્રયત્ન કરતા હતા અને એમાં પણ અનેક પ્રકારના છીંડા હોય અને એટલા માટે ખરેખર ટેલેન્ટેડ વિદ્યાર્થી, ટેલેન્ટેડ યુવાન એમને તક મળતી નહોતી। પારદર્શક રીતે એમને તક મળે
આના માટેના જે સફળ પ્રયત્ન જે કરવામાં આવ્યા ને એના કારણે આજે 10 લાખ યુવાનોને એ નોકરી મળી છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે યુવાનો નિરાશ ન થાય, સમજદાર એમને લાયકાત પ્રમાણેની જોબ મળે અને એના દ્વારા એ પોતાનો ટેલેન્ટને ઉજાગર કરીને લોકો સુધી લાભ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે, એના માટે યુવાનોને પ્રોત્સાહિત પણ કર્યા. આમ જોવા જઈએ તો સરકારી નોકરીઓ એ ભલે 10 લાખ લોકોને આપવામાં આવી, 10 લાખ યુવાનોને આ તક મળી, પરંતુ જે અનેક યોજનાઓ દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ હશે કે જે એમણે નિર્ણયો કર્યા વિદેશ નીતિ બદલવાને કારણે દેશને જે અનેક દેશોમાંથી જે કામ કરવાની તક મળી એના કારણે પણ કરોડો યુવાનોને આ કામ મળ્યું છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પણ મક્કમપણે માને છે કે જે દેશની વસ્તીના 65% યુવાનો હોય અને યુવાન જો નિરાશ થાય તો દેશની પ્રગતિ અટકી જાય, અને જો પ્રગતિ ના અટકાવી હોય તો યુવાનોને સમયસર એમને લાયકાત પ્રમાણેનું કામ મળી જાય એવી વ્યવસ્થા સરકાર અને લોકો દ્વારા, અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા, અનેક ઇન્ડસ્ટ્રીઓ દ્વારા એ સમયસર કરવી જોઈએ. અને એ યોજનાઓ બનાવીને એની ઉપર કામ કરીને જે રીતે વાતાવરણ નિર્માણ થયું છે એના કારણે આજનો યુવાનને પોતાનું ભવિષ્ય બ્રાઇટ લાગે છે. એમને લાગે છે કે ભવિષ્યમાં એમની પાસે તકો છે અને આ તકોનો ઉપયોગ કરીને એ અનેક લોકોને પોતાના કુટુંબને એનું તો ભરણ પોષણ કરશે જ, પરંતુ આ સમાજ માટે પણ કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના એનામાં આવશે. એ યુવાન કદાપી નિરાશ નહીં થાય, પ્રગતિના પંથ ઉપર આગળ જતી વખતે અનેક લોકોને સાથે લઈ જવા માટેનો સફળ પ્રયત્ન એ કરવાનો છે. પણ જે યુવાનોને આ તક મળે છે, આજે જ્યારે 10 લાખ પૈકીના 51,000 લોકોને આજે તક મળે છે અને હમણાં સુધીમાં 10 લાખ લોકોને તક મળી છે, મારે એમને પણ કહેવું છે કે સરકાર અને સમાજ તમારી જ્યારે આટલી ચિંતા કરતા હોય ત્યારે તમારી પણ જવાબદારી છે કે પ્રામાણિકપણે આપણે આપણા કામને વળગી રહેવું જોઈએ. આપણી જે અપેક્ષા છે એના કરતાં આપણી ફરજો શું છે એની ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને એ જો તમે ધ્યાન આપશો તો દેશની પ્રગતિમાં તમારું ખૂબ મોટું યોગદાન પણ મળશે, તમને સંતોષ પણ થશે. ત્યારે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દ્વારા વિકસિત ભારતની 2047ની જે કલ્પના કરી છે એ કલ્પનાને સાકાર કરવી હશે તો આપ સૌએ અને આપણે બધાએ સાથે મળીને મહેનત કરવી પડશે. આજે આપણા દેશમાં અનેક તકો ઊભી થઈ છે. આજે વિદેશમાં પણ લોકોને લાગે છે કે દુનિયામાં પણ લોકોને લાગે છે કે ભારત એ ફક્ત પ્રગતિશીલ દેશ નથી, પરંતુ ઝડપથી વિકસિત થતો આ દેશ છે. અને સર્વાંગી વિકાસની વ્યાખ્યા શું છે, સર્વાંગી વિકાસ શું હોઈ શકે એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે દેશ અને દુનિયાને બતાવ્યું છે. અને જ્યારે પ્રગતિ થતી હોય, વિકસિત ભારત તરફ આગળ વધતા હોય ત્યારે અનેક તકો આ યુવાનોની સામે આવીને ઊભી છે. આજે શિક્ષણનું સ્તર વધ્યું છે, શિક્ષણનું સ્તર સુધર્યું પણ છે, અને ત્યારે આ યુવાનોની ટેલેન્ટ પણ આજના જમાનાને અનુરૂપ, આજના વાતાવરણને અનુરૂપ એ કામ કરી રહ્યા છે. જ્યારે એઆઈની જે ટેકનોલોજી આપણી સામે આવીને ઊભી છે ત્યારે એનાથી ડરવાને બદલે એનો ઉપયોગ કરીને વધુ પરફેક્શન સાથે કામ કેવી રીતે કરી શકાય એનો પણ પ્રયત્ન એ બધા યુવાનોએ મળીને કરવો જોઈએ. અને મને વિશ્વાસ છે મિત્રો કે આજના યુવાનને જ્યારે તક મળે છે ત્યારે પોતાની જાતને નીચોવી નાખે છે અને કંઈક સારું કરવાની ભાવના સાથે જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે એને સારા પરિણામ પણ મળે છે અને એને પોતાને પણ સંતોષ થાય છે કે મેં સમાજ માટે અને દેશ માટે મેં કંઈક સારું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એમાં હું સફળ પણ થયો છું. તો આ સફળતા પ્રાપ્ત કરીને આ સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે સૌએ કમર કસીને કામ કરવું પડશે. એક સમય હતો કે આપણા દેશને લોકો મદારીનો દેશ કહેતા હતા, આપણા દેશને ભિક્ષુકોનો દેશ કહેતા હતા, આપણા દેશમાં ગંદકીનો દેશ કહેતા હતા.
આજે તમે દરેક વાતને માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે દૂર કરી છે. સ્વચ્છતાની ઝુંબેશ દ્વારા એમણે આ દેશની અંદર જે સફાઈ માટે જનજાગૃતિ કરી, એના કારણે આજે નાનું બાળક પણ ચોકલેટ ખાઈને રેપર એ ગમે ત્યાં ફેંકતો નથી, એ ખિસ્સામાં મૂકી દે છે અથવા ડસ્ટબિન શોધીને એમાં નાખી દે છે. આ પ્રકારની જાગૃતિ એ દરેક લોકોના મનમાં આવી છે કે આપણા દેશને જે આ મેણું છે કે ગંદો દેશ છે, ગંદા ગોબરા લોકો છે, એના બદલે સ્વચ્છતાના આગ્રહી લોકો છે. આપણને ખબર છે કે મહાત્મા ગાંધીજી જ્યારે આઝાદી માટેનું આંદોલન ચલાવતા હતા, એ આંદોલનમાં પણ એમનો આગ્રહ હતો કે સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ. એ ધ્યેય સાથે આગળ વધતા હતા ત્યારે પણ સ્વચ્છતા માટે એમનો આગ્રહ હતો, અને સ્વચ્છતા માટેનો અતિ આગ્રહ પણ એવા અનેક દાખલાઓ એમના જીવનમાં એ આપણે જોયા છે. સ્વતંત્રતા તો આપણને મળી ગઈ, પરંતુ સ્વચ્છતા તરફ આપણે દુર્લક્ષ કર્યું હતું. માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે મહાત્મા ગાંધીજીની એ સ્વચ્છતા માટેના આગ્રહની જે એમની મનોકામના હતી એ પૂર્ણ કરવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે દરેક જણ જો ઇન્વોલ્વ થશે, દરેક જણ જો પોતાની જવાબદારી સમજે, આ વિકસિત ભારત જવા માટેનું આપણે એક ડગલું આગળ વધી રહ્યા છે એવી ભાવના સાથે કામ કરશે તો દેશ તો વિકસિત થવાનો છે, પણ દેશની અંદર પણ અનેક તકો આપણને જોવા મળી રહી છે. આપણે જોઈએ છે કે ઘણા બધા લોકો એને વિદેશનો મોહ છે, એને વિદેશમાં જવું છે, એને એમ લાગે છે કે ત્યાં જ એમનું ફ્યુચર છે, પરંતુ ત્યાં જે લોકો છે એમને પણ હવે આપણા દેશની પ્રગતિ જોઈને ફરીથી અહીંયા આવવાનું મન થાય છે. એ ત્યાં હોવા છતાં એમને એમ થાય છે કે અમે આપણા દેશમાં જઈએ, આપણા રાજ્યમાં જઈએ, આપણા ગામમાં કે શહેરમાં જઈએ અને ત્યાં કંઈક નવું કરીએ. આ ભાવના એટલી બધી પ્રબળ છે કે આવનારાનો પ્રભાવ વધતો જાય છે, અને એના કારણે દેશમાં જે નવી ટેકનોલોજી આવે છે અને એના કારણે લોકોનું જીવન પણ એ સરળ બનતું હોય છે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એ આપણા જીવનમાં જે આપણે કરીએ છીએ એ પણ આજના યુવાનોની દેન છે. યુવાનોએ જે રીતે કંઈક ને કંઈક નવું શોધીને એનો ઉપયોગ પોતાના જીવનમાં, રોજેરોજના જીવનમાં કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જે કામમાં પ્રયત્ન કર્યો છે, એના ખૂબ સારા પરિણામ પણ આપણને મળ્યા છે. સરકારી તંત્રની અંદર પણ પહેલાં તમે કોઈ પણ રિપોર્ટ થતા તેના અક્ષર વંચાય નહીં, ટાઈપરાઇટરમાં થાય તો અનેક ભૂલો થાય, એમાં સમય પણ બગડે. પણ આજના જમાનાની અંદર કોમ્પ્યુટર ઉપર એ કામ એકદમ સ્વચ્છ રીતે, સુંદર રીતે અને વંચાય એ રીતે, લાંબો સમય ટકે એ રીતે આપણે એની પર કામ કરીને આપણે કરી શકીએ છીએ અને સારા પરિણામો આપણને મળી રહ્યા છે. એમાં સમયનો પણ ખૂબ સારો બચાવ એ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. હું તો આપ સૌને કહીશ કે તમે એવા સમય સુવર્ણકાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો કે જ્યારે આ દેશ સર્વાંગી વિકાસમાં આગળ વધી રહ્યો છે. આજે દેશ આર્થિક રીતે પ્રગતિ કરીને 2014માં જે 11મા નંબરમાં હતો, આજે 4થા નંબર પર જવાની તૈયારીમાં છે. અને એ રીતે આગલા વર્ષોની અંદર માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબનું ટાર્ગેટ છે કે આપણો દેશ આર્થિક રીતે 3જા નંબરની મજબૂતાઈ હાંસલ કરે, કે જે મજબૂતાઈને કારણે આ દેશના તમામ લોકો આર્થિક રીતે મજબૂત થાય એવો એનો પ્રયત્ન થતો હોય છે. તો મિત્રો, જ્યારે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આપણે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ પણ પોતે ટેકનોક્રેટની જેમ કામ કરે છે. એમણે યોજનાઓના અમલીકરણ માટે રોજિંદા જીવનમાં પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગને સરળ બનાવ્યો છે. જ્યારે આજે રેલવેમાં 51 લોકોને આજે અહીં નિમણૂક પત્ર મળવાનો છે, ત્યારે મને યાદ આવે છે કે એક સમય હતો કે રેલવેની મુસાફરી એ આપણને અત્યંત દુઃખદ મુસાફરી હતી. ખૂબ ત્રાસ થાય, ગંદકી માજા મૂકે એવી હોય, એની સ્પીડ ગોકળ ગાયની ગતિની જેમ હોય, એ પ્રકારના દ્રશ્યો આપણે અને એ પ્રકારના વાતાવરણમાંથી આપણે પસાર થતા હતા. પરંતુ આજે વંદે ભારત જેવી ટ્રેનોની અંદર સ્વચ્છતા આપણને આંખે ઉડીને વળગે છે. સ્પીડ એ જે આપણને જોઈએ છે સ્પીડમાં, કે આજના વાતાવરણમાં જો 2047 સુધી આપણે ઝડપમાં જવું હશે તો એમાં ધીમી ગોકળગાયની ગતિએ નહીં જઈ શકાય. અને એટલા માટે વંદે ભારત જેવી ટ્રેનો આવી છે જે તમને સ્પીડ પણ આપે છે, સ્વચ્છતા પણ આપે છે
અને એના કારણે એ પ્રવાસ એકદમ સુખદ થાય છે. ઘણીવાર લોકો પ્લેનમાં જવાને બદલે હવે ટ્રેનમાં જવાનું પસંદ કરે છે અને ટ્રેનના પ્રવાસનો આનંદ પણ માણે છે. તો આ પણ એક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એની અંદર થયો છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે જે રીતે રેલવેની અંદર એક ક્રાંતિ કરી છે, એવી રીતે દરેકના જીવનમાં પણ ક્રાંતિ કરી છે. દરેક વિષયની અંદર ક્રાંતિ કરી છે. દરેક યોજનાઓ એમની દરેક સેક્ટરના લોકો માટે કામ થાય, એમને સરકારની યોજનાઓનો લાભ મળે, એના માટે એ સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે. આપણે જોયું હશે કે જે ખેડૂતો, કે આ દેશના ખેડૂતોને જ્યારે આપણે એને જગતના તાજ કહીએ છીએ, અને છતાં એ દુઃખી છે, એ લાચાર છે, ત્યારે આજ દિન સુધીમાં કોઈ સરકારે ખેડૂતો માટેની સીધી લાભની યોજના બનાવી નહોતી. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આ યોજના બનાવી. ખેડૂતોના ખાતામાં 3 તબક્કામાં 2,000 કહીને કુલ 6,000 દર વર્ષે જમા થાય છે. પણ એની તમે સિસ્ટમનો જ્યારે જોજો કે પહેલાં તો એક પ્રાંત અધિકારી કે નાયબ મામલતદાર પાસે પણ ખેડૂત બિચારો લાચાર થઈને અરજી કરે, મદદ માંગે, પોતાની લાચારી વ્યક્ત કરતો હતો, અને છતાં એને કોઈ મદદ મળતી નહોતી, કેમ કે કોઈ યોજના જ નહોતી. માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કહ્યું કે જ્યારે આપણે જેને જગતનો તાજ કહીએ છીએ, એ લાચાર ના હોઈ શકે, અને એટલા જ માટે કોઈ પણ અરજી કર્યા વગર, કોઈ પણ લાચારી વ્યક્ત કર્યા વગર એ સીધા એના ખાતામાં પૈસા જમા થાય. કોઈ મિડલમેન નહીં, કોઈ વચ્ચે દલાલ નહીં, કોઈ અરજી કરવાની નહીં, કોઈ હાથ લંબાવવાનો નહીં, અને એ રીતે 1 સેકન્ડની અંદર આ ખેડૂતોના ખાતામાં જે રીતે પૈસા જમા થાય છે, એના કારણે ખેડૂતોનું પણ એ સન્માન જળવાય છે. એમને પણ લાગે છે કે અમારી પણ કોઈ કદર કરી રહ્યું છે. તો એમાં પણ જે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો છે. તો જે નવા મિત્રોને આજે અહીં નોકરી માટેના નિમણૂક પત્ર મળવાના છે, એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે એ પોતાની જવાબદારીઓ પણ નિષ્ઠાથી, પ્રામાણિકપણે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના સાથે એ નિભાવે એવી અપેક્ષા પણ છે, અને વિશ્વાસ પણ છે કે આ યુવાનોએ પોતાના કામમાં તનતોડ મહેનત કરીને લોકોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે એ જે સક્ષમ છે, એ સક્ષમતા દ્વારા એ ચોક્કસપણે પરિણામ આપશે એવી તમારી પાસેથી અપેક્ષા સાથે હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જય ગરીબ ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. बहुत बहुत धन्यवाद. DRF सर से आग्रह करूंगा कि मिनिस्टर सर, हमारे सभी ऑनरेबल एमपीज, नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा पीएम सर के कार्यक्रम के बाद. अच्छा तू पण पाछળ નથી ઉભો સાહેબનો ફેસ દેખાઈ દીધો ને, સાહેબનો ફેસ દેખાઈ દીધો. नमस्कार.
राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 2-3 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे रोजगार मेलों के द्वारा देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा का स्वर्णिम अवसर मिला है। आज के 16वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परमाननीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला की 16वीं किस्त लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपके द्वारा बटन दबाते ही 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर लगभग 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां आज रेलवे मंत्रालय में होने वाली। इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के 47 भिन्न स्थानों से इस समय आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते। प्रधानमंत्री जी, आज दर्शकों के साथ ये बात भी साझा करनी है कि आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के इस सिलसिले से प्रेरित होकर के कई एक ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहां प्रांतीय स्तर पर भी रोजगार मेला का काम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2024 तक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि जैसे राज्यों में लगभग 60 प्रांतीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए गए। इससे पहले जून 2022 से लेकर के जून 2024 के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम इत्यादि में नियमित तौर पर प्रांतीय स्तर के रोजगार मेलों का आयोजन होता है। अभी हाल ही में पिछले महीने उत्तर प्रदेश में आयोजित रोजगार मेला में लगभग 60,000 से अधिक एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए। साथ ही साथ केंद्र की तर्ज पर बहुत सारे राज्य भी अब हाई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अभी 2 ही दिन पहले 9 जुलाई 2025 का यदि जब आंकड़ा देखें तो भिन्न भिन्न राज्यों से राज्य सरकारों के कर्मचारी लगभग 82 लाख की संख्या में इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या बिहार से 10 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी आज इस पोर्टल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी, पिछले कुछ समय में एक और अनुभव यह भी आया है कि बहुत सारे नौजवान और उनका रुझान सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आकर्षित हुआ। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो शायद पहले युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं थे, अब प्राथमिकता में दिखने लगे। उदाहरण के तौर पर जहां आपके आह्वान से चलते स्टार्टअप्स की कुल संख्या देश भर में 300, 350, 400 से बढ़कर के 1.25 लाख तक जहां पहुंची, हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हुए। वहीं साथ ही साथ बायोटेक स्टार्टअप की संख्या सन 2014 में मात्र 50 हुआ करती थी, आज बढ़कर के 11,000 से अधिक हो गई। और स्पेस स्टार्टअप मात्र सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 300 से अधिक हो गए। और यदि हम इन स्टार्टअप्स के माध्यम से उत्पन्न हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज की संख्या देखें तो समझ में आता है कि 17,28,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज केवल गत 8-10 वर्षों में स्टार्टअप्स के माध्यम से उपलब्ध हुई है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि गत कुछ वर्षों में आपके दिशा निर्देश में एक ऐसा इकोसिस्टम निर्माणित हुआ है जो कहा जा सकता है एक इनेबलिंग इकोसिस्टम है, जहां एक और स्टार्टअप्स को इंसेंटिव मिल रहे हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसे रोजगार के प्रावधान भी है, और साथ ही साथ नए
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से प्राथमिकताएं चुनने की स्वतंत्रता भी है। इसी प्रकार जिस तरह से गत एक दशक में महिलाओं को आपकी ओर से प्रोत्साहित किया गया है, उसका नतीजा ये है कि आज देश में 75,935 ऐसे स्टार्टअप ग्रुप्स हैं जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, अर्थात वुमेन हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग पार्टिसिपेंट्स टू बिकमिंग लीडर्स। और यदि इस सब की तुलना यूपीए के कार्यकाल से की जाए तो इतना अधिक है कि तुलना करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। और इसलिए अब वक्त आ गया है कि सारी ऊर्जा और सारा ध्यान केंद्रित किया जाए विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए, और ऐसे रोड मैप को बनाया जाए जहां देश का हर नागरिक, हर युवा अपनी क्षमता अनुसार इंडिविजुअली अथवा कलेक्टिवली इस नए हिंदुस्तान की रचना में अपनी भूमिका निभा सके और योगदान कर सके, ताकि जब 15 अगस्त 2047 का सूरज निकले तो मुल्क का हर नौजवान, मेरी भी भागीदारी रही। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी आपका पुनः अभिनंदन। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं, और आज का यह रोजगार मेला एक बार फिर युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। मेला युवा शक्ति से पूरा होगा विकसित भारत का सपना। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्कार। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का केंद्र सरकार में हमारा अभियान युवाओं को पक्की नौकरी देने का जारी है। हमारा अभियान निरंतर जारी है, और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे, और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है।
और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। सूत्र एक, नागरिक प्रथम, सिटीजन फर्स्ट। आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला है। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। आप सबको पता है, 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा है। नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं। इसलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है। और इसके लिए अहम निर्णय भी लिए गए हैं। आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियां भी बनाई गई हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है, वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। आज जब मैं नौजवानों को देखता हूं कि वे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं,
तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्टार्टअप के विषय में विस्तार से कुछ आंकड़े भी बताए आपको सामने। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का नौजवान बड़े विजन के साथ, तेज गति से, मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा है। वो कुछ नया करना चाहता है। साथियों, भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई नई जॉब्स बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। सिर्फ पीएलआई स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। बीते सालों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़। इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। पहले देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट थी, सिर्फ 2 या 4। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी करीब 300 यूनिट्स भारत में है और इसमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। वैसा ही एक और क्षेत्र है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उसकी बहुत चर्चा भी है, बड़े गौरव से चर्चा हो रही है, और वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है।
हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं और साथ साथ गाड़ियों की डिमांड भी बहुत बढ़ी है। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है भारत में। अलग अलग सेक्टर्स में देश की ये प्रगति, ये मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ये सब तब संभव होता है जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, नौजवानों का पसीना लगता है उसमें, उनका दिमाग काम करता है, वो मेहनत करते हैं। देश के नौजवानों ने रोजगार तो पाया है, लेकिन ये कमाल करके भी दिखाया है। अब सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको हर संभव प्रयास करना है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये गति निरंतर बढ़ती रहे। जहां भी आपको दायित्व मिले, आप एक प्रोत्साहक के रूप में काम करें, लोगों को एनकरेज करें, रुकावटें दूर करें। जितना ज्यादा आप सरलता लाएंगे, उतनी सुविधा देश में अन्य लोगों को भी बढ़ेगी। साथियों, आज हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मेरे नौजवानों के पसीने की कमाल है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है। हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के दायरा गिना जाता है। और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है, इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं, पीएम आवास योजना। अब ये पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए पक्के घर बन चुके हैं और 3 करोड़ नए घर अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इतने घर बन रहे हैं तो इसमें मिस्त्री, लेबर, रॉ मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में छोटी छोटी दुकानदारों के काम, माल ढोने वाले ट्रक के ऑपरेटर्स, आप कल्पना कर सकते हैं कितने सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसमें भी सबसे खुशी की बात है कि ज्यादातर रोजगार हमारे गांव में मिले हैं, उसे गांव छोड़ करके जाना नहीं पड़ रहा है। इसी तरह 12 करोड़ नए टॉयलेट देश में बने हैं। इससे निर्माण के साथ साथ प्लम्बर्स हो, लकड़ी का काम करने वाले लोग हो, जो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनके लिए कितने सारे काम निकले हैं। यही हैं जो रोजगार का विस्तार भी करते हैं
प्रभाव भी पैदा करते हैं। ऐसे ही आज 10 करोड़ से अधिक नए, मैं जो बात बता रहा हूं नए लोगों के बताता हूं, नए एलपीजी कनेक्शन देश में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए हैं। अब इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉटलिंग प्लांट्स बने हैं। गैस सिलेंडर बनाने वालों को काम मिला है, उसमें भी रोजगार पैदा हुए हैं। गैस सिलेंडर की एजेंसी वालों को काम मिला है। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने के लिए जो लोग चाहिए उनको नए नए रोजगार मिले हैं। आप एक एक काम लीजिए, कितने प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इन सारी जगहों पर लाखों लाखों लोगों को नए रोजगार मिले हैं। साथियों, मैं एक और योजना की भी चर्चा करना चाहता हूं। अब आपको पता है ये योजना तो यानी कहते हैं ना 5 उंगली घी में, या तो कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू, ऐसी है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सरकार आपके घर की छत पर यानी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए एक परिवार को एवरेज करीब करीब 75,000 रुपये से भी ज्यादा दे रही है। इससे वो अपने घर के छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाता है। एक प्रकार से उसका घर की छत बिजली का कारखाना बन जाती है, बिजली पैदा करता है और वो बिजली खुद भी उपयोग करता है। ज्यादा बिजली है तो बेचता है। इससे बिजली का बिल तो जीरो हो रहा है, उसके पैसे तो बच ही रहे हैं। इन प्लांट्स को लगाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, सोलर पैनल बनाने के कारखाने लगते हैं, रॉ मटेरियल के लिए कारखाने लगते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी पूरी एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक स्कीम लोगों का तो भला कर रही है, लेकिन लाखों लाखों नए रोजगार इसके कारण पैदा हो रहे हैं। साथियों, नमो ड्रोन दीदी अभियान ने भी बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए मौके भी बनाए हैं। इस स्कीम के तहत लाखों ग्रामीण बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उपलब्ध जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि हमारी ये ड्रोन दीदी, हमारी गांव की माताएं बहनें खेती के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए कमाने लग गई है। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को बहुत बल मिल रहा है। खेती हो या डिफेंस, आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। साथियों, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 करोड़ लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। और आप तो जानते हैं लखपति दीदी के मेरे का मतलब है एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक उसकी आय होनी चाहिए, और एक बार नहीं, हर वर्ष होती रहनी चाहिए। वो है मेरी लखपति दीदी, 1.5 करोड़ लखपति दीदी। अब आप देखिए, गांव में जाएंगे तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलेगी। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसी अनेक स्कीम्स में भी हमारे गांव की माताओं बहनों को भी रोजगार मिला है। ऐसे ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार
रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है और डिजिटल पेमेंट के कारण आजकल तो हमारे हर रेहड़ी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके आगे की रकम मिलती है, बैंक का विश्वास बढ़ जाता है, कोई कागज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए, इसके तहत हमारे यहाँ जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार भी मिला है। ऐसी अनेक योजनाओं का ही प्रभाव है कि सिर्फ 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, अगर परिवार में आय का साधन न होता, तो मेरा गरीब भाई बहन जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था, जीवन के लिए एक एक दिन काटने के लिए उसको मौत दिखाई देती, इतना डर लगता था। लेकिन आज वो इतना ताकतवर बना है कि मेरे 25 करोड़ गरीब भाई बहनों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया, विजयी होकर के निकले हैं। और ये सारे मेरे 25 करोड़ भाई बहन जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ा है ना, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े, रोते नहीं बैठे। गरीबी को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, पराजित कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब इन 25 करोड़ का कितना नया आत्मविश्वास होगा। एक बार संकट से व्यक्ति निकल जाए ना, फिर नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे देश में एक नई ताकत ये भी आई है जो देश को आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। और आप देखिए, ये सिर्फ सरकार कह रही ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है, हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। साथियों, विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए, सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है, हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक मेरे लिए सबसे पहले उसकी मदद, उसकी मुसीबतों से मुक्ति देखते ही देखते देश आगे बढ़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 20-25 साल आपकी कैरियर के तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ऐसे कालखंड में हैं
जब देश के लिए भी 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए अहम 25 वर्ष है। इसलिए आपको अपने काम, अपने दायित्व, अपने लक्ष्यों को विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात करना है। नागरिक देवो भव, ये मंत्र तो हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, दिल दिमाग में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये युवा शक्ति है, पिछले 10 साल में देश को आगे बढ़ाने में मेरे साथ खड़ी है। मेरे एक एक शब्द को देश की भलाई के लिए उन्होंने जो भी कर सकते हैं किया है, जहां है वहां से किया है। आपको मौका मिला है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, आप करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका परिवार भी उज्जवल भविष्य का अधिकारी है। आप भी जीवन में बहुत प्रगति करें। आई गॉट प्लेटफॉर्म पर जाकर के लगातार अपने आप को अपग्रेड करते ही रहे। एक बार जगह मिल गई, चुप पर बैठिए मत, बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत आगे जाने के लिए सोचिए। काम कर करके, नया नया सीख करके, नया नया परिणाम ला करके प्रगति भी कीजिए। आपकी प्रगति में देश का गौरव है, आपकी प्रगति में मेरा संतोष है। और इसलिए मैं आज, जब आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आया हूं, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, और बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए अब आप मेरे एक साथी बन रहे हैं। मेरे एक निकट साथी के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीआरएम से उसे आगे करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि बस बाइक ऊपर आपको डाउनच है ना। तो वही right.
सेंटर में नहीं जो है ना पब्लिक आई गई नहीं जो भाई मैं सेंटर में તમે અહીં કેમેરા સેટ કરી જતા वडोदरा में कुल 165 नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं आज के 12 तारीख के समारोह में, जिसमें से 63 कैंडिडेट्स को व्यक्तिगत रूप से आज इस मंच के द्वारा हमारे बीच पधारे हुए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा दिया जाएगा। मैं नाम पढ़ूंगा एक एक करके। पहला नाम है रितेश शर्मा। कैंडिडेट्स तैयार रहे। रितेश शर्मा, टेक्नीशियन, रेलवे। रितेश भाई इधर तालियां बजती रहे। चौहान निकुंज, नवीन चंद्र दूसरे कैंडिडेट हैं, ये भी रेलवे के लिए। रविंद्र कोहली, ये भी टेक्नीशियन पद के लिए रेलवे में ही जी। अगले हैं आदित्य अनिल कुमार, टेक्नीशियन रेलवे, तैयार है और मंच पर आए। नरेंद्र प्रेम सुख, हरेंद्र प्रेम सुख। अमरनाथ त्रिपाठी, ये भी रेलवे। ये सभी बधाई के पात्र हैं अमरनाथ त्रिपाठी। इसके पश्चात अमन यादव, टेक्नीशियन पद के लिए रेलवे में ही। अमन यादव। आकाश गोराई, ये भी रेलवे विभाग, टेक्नीशियन ग्रेड 3। राम नारायण वीराराम माली, ये भी रेलवे विभाग, टेक्नीशियन पद हेतु। प्रदीप कुमार राजकुमार, टेक्नीशियन पद रेलवे। प्रियांशु वर्मा, ये भी रेलवे, टेक्नीशियन 1 पद के लिए। बलराम मीना, ये भी रेलवे विभाग हेतु। रजनीश कुमार, टेक्नीशियन 1, इस पद के लिए रेलवे विभाग, रजनीश कुमार। इसके पश्चात शुभम फर्किया, रेलवे में। अभिषेक कुमार, टेक्नीशियन 1, रेलवे। तालियां बजती रहे, इनको बधाई के लिए आपको सिर्फ ताली ही बजानी है। अमन कुमार पांडे, रेलवे विभाग, टेक्नीशियन ग्रेड 1 पद के लिए। कालेंद्र कुमार, टेक्नीशियन 1, रेलवे। अब मैं आग्रह करूंगा, विशेष अनुरोध करूंगा पोस्टल डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी
जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ है, कृपया वो भी मंच पर आए। पोस्ट मास्टर जनरल हमारे बीच में पधार चुके, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। अच्छा, उनके बिहाफ में आए हैं सर। अब पोस्टल डिपार्टमेंट से ठाकुर ऋषिताबेन संजय सिंह, पोस्टल डिपार्टमेंट, प्लीज बेटा मंच पर आए। कोहली प्रांजल, ये भी पोस्टल विभाग से हैं। कृष धर्मेंद्र कुमार पटेल, ये भी पोस्टल विभाग से हैं। कृष अब मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारी प्लीज मंच पर आए। रेवेन्यू से हमारे बीच मौजूद जो अतिथि हैं, શું જોયે તને બોલને મેં કહેતો તો હું હટી ગયો रेवेन्यू विभाग से बिंदिया जागीर, अंकुर लूनिया, अंकुर लूनिया, शशिकांत उज्ज्वल, शशिकांत उज्ज्वल, तालियां बजते रहे इनके लिए भी। योग अश्विन भाई खेरी, पोस्टल विभाग से। चावड़ा युवराज सिंह नारायण सिंह, ये भी पोस्टल विभाग। अभिषेक कुमार चौधरी, ये पुनः रेवेन्यू विभाग से। शेखर यादव, ये भी रेवेन्यू। मनीष खिलेरी, रेवेन्यू विभाग। रोहित कुमार, ये भी रेवेन्यू से। रिपुदमन सिंह, रिपुदमन सिंह, रेलवे विभाग। रिपुदमन सिंह। मान सिंह, मनीष कुमार यादव, रेलवे। मनीष कुमार, पुनः मनीष कुमार, रेलवे। शांतनु कुमार, शांतनु कुमार, ये भी रेलवे विभाग हेतु। राजीव सठ, रेलवे। अमर ज्योति मिश्रा, ये भी टेक्नीशियन 1, रेलवे। सूरज भान कानाराम, सूरज भान। राजेश कुमार, ये भी रेलवे। जितेंद्र कुमार, रेलवे। राजेंद्र भिदरिया, रेलवे। राकेश कुम्हार, रेलवे। प्रभाकर तिवारी, रेलवे। शैलेंद्र कुमार, रेलवे। राहुल सिंह, राहुल सिंह, राकेश कुमार। राहुल सिंह, रेलवे। अनिल लांबा, अनिल लांबा, रेलवे। शैलेंद्र आ जाओ। ले लीजिए, कतार में खड़े रहे जो दी गई है। अनिल लांबा आ गए हैं।
अनिल लांबा रेलवे, अभिषेक कुमार गुप्ता ये भी रेलवे, अभिषेक कुमार गुप्ता, भगवती लाल पुरोहित रेलवे से, राहुल राठौड़ रेलवे, राहुल राठौड़, पंकज कुमार रेलवे, ताराचंद बैरवा रेलवे, विक्रम कुमार रेलवे, प्रद्युम्न ये भी रेलवे है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, सुभाष ये भी रेलवे हेतु टेक्नीशियन ग्रेड 3, मृत्युंजय कुमार पांडे पुनः रेलवे, तरुण स्वर्णकार ये भी रेलवे, राकेश यादव आगे आ जाए, ये भी रेलवे, विपिन कुमार और आलोक राज ये भी रेलवे से। तालियां बजती हैं बधाई के लिए बहुत बहुत। और दो हमारे बीच में दो स्पेशल एबल्ड भी हैं जी जी। वो दोनों रेलवे से हैं, प्रियंका कुमारी और रोशन कुमार। स्पीच बंद कर दो ना, रिकॉर्डिंग। प्रियंका कुमारी तथा रोशन कुमार। हाँ सर।